مرتبہ کوئی کیا اپنے آپ سے کہنا ہے ایک مرتبہ اگر کوئی پاخانہ کرے اور پھر پانی نہ ملے تو اپنے مجسمے سے انسان گرائے گا. سخت گرمی میں کئی روز تک نہ نہائے نا تو جسم کاٹنے لگتا ہے. وہ عورت کھانے میں نمک نہیں, پاخانہ پیشاب کے لیے پانی نہیں, غسل کے لیے پانی نہیں. اور جب عدت پوری ہوتی تھی نا, اور یہ کوئی چھوٹا وقت نہیں ہوتا تھا, سال بھر, اور جب عدت پوری ہوتی تھی نا, میری مائیں اور بہنیں جو سن نہیں ہیں وہ غور سے سمجھے گا, تم آقا کی تعلیمات کو کیسے پیروں تلے روند رہی ہو. تمہاری حیثیت کیا تھی, تمہاری اوقات کیا تھی؟ ارے جب عدت پوری ہوتی تھی چہرے پہ کالک ہوتی جاتی تھی, گود میں مینڈیاں بھری جاتی تھی, اور اس کے بعد گدھے کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا کر سارے شہر میں گشت کرایا جاتا تھا. وہ ان مینگنیوں کو لوگوں کی طرف پھینکتی تھی. لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس عورت کی عدت پوری ہو گئی ہے. اللہ اللہ, کوئی عورت سڑک پہ سے گزرتی تھی نا تو جس کا من چاہتا تھا وہ اس کی عزت لوٹ لیا کرتا تھا, جس کا من چاہتا تھا کھلونا بناتے تھے. تبھی لوگ یہ سوچا کرتے تھے میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی تو میں اسے کیسے پالوں گا, یہ تو میری بے عزتی کا سبب ہے. اللہ اللہ, یہی بیٹی جو اسلام سے پہلے کا اس کا حال تھا, مگر جب میرے آقا تشریف لائے ہیں نا تو اسی بیٹی کے لیے فرمایا ہے کہ جس گھر میں اللہ بیٹی عطا فرمائے گا اور پھر اس کا باپ اس کی اچھی پرورش کر کے اس کو اپنے گھر سے ودا کرے گا تو اللہ پاک اس پر جنت کو واجب کر دے گا. سبحان اللہ, سبحان لیکن پرورش ہو آ رہی ہے اسلام کے دائرے میں. کل کی رات ہوگی, لوگ کریں گے کیا؟ یا تو عورتیں خود جائیں گی سجاوٹ دیکھنے, یا بھیا لے کے جائے گا, ابا لے کے جائیں گے, یا پھر کیا کہتے بیٹا لے کے جائے گا. اللہ اللہ, یہ سجاوٹ دیکھنا کوئی ضروری تو نہ تھا, یہ سجاوٹ دیکھنا کوئی فرض تو نہ تھا, یہ سجاوٹ دیکھنا کوئی شریعت کا حصہ تو نہ تھا, لیکن پردہ کرنا یہ شریعت کا حصہ ہے, یہ واجب ہے, یہ ضروری ہے. شریعت میں جو واجب تھا اس پر ترک کر دیا, اور جس کا کوئی مانگنا. میں سرتاج عالم خبر 7 سے ہم لوگ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں, اور ہلدوانی میں اس سمے ہم لوگ موجود ہیں پپو کے باغیچے میں. جی ہاں, اندرا نگر چھیتر کا علاقہ ہے. یہاں پر ایک بہت ہی عظیم الشان جلسہ سرزمین ہلدوانی میں اس سمے ہو رہا ہے. جی ہاں, عید میلاد النبی کے موقع پر روزانہ جلسے ہو رہے ہیں. گھروں کو سجایا جا رہا ہے, مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے, سڑکوں کو سجایا جا رہا ہے. جی ہاں, محفل میلاد سجائی جا رہی ہے, نعت خوانی کے پروگرام ہیں. کل ہی میں آپ کو بتا دوں, کل کو ہی بلڈ ڈونیشن کیمپ کا ایک کاریکرم ایک ہاسپٹل کے اندر ہونا ہے اسی موقع پر. اس کے علاوہ بچوں کے ایگزام, بچوں کے سامانیہ گیان کا بھی ایک پروگرام ہوگا, وہ بھی ہم آپ کو لائیو دکھائیں گے. اسی طرح کئی پروگرام ہو رہے ہیں, وہ ہم آپ کو روزانہ دکھا رہے ہیں. لیکن ازہری کمیٹی آج پپو کے باغیچے میں ایک کاریکرم وہ کرا رہی ہے, اور اس کے اندر علماء اکرام تقریر کر رہے ہیں. جی ہاں, بلگرام شریف سے سہیل میاں آئے ہیں. اس کے علاوہ شاعر اسلام بھی باہر سے تشریف لائے ہیں, اور اس سمے خطاب کر رہے ہیں مفتی اعظم قادری, جو کہ ہلدوانی جامع مسجد کے امام ہیں. جی ہاں, اور یہاں پر کافی چیزیں بتائی جا رہی ہیں اسلام کے حساب سے کیسے زندگی گزارنی ہے. جی ہاں, پیارے نبی کی یوم پیدائش 12 ربیع الاول شریف کو جلوس بھی نکلنا ہے. آج پرشاسن نے ہلدوانی میں ایک میٹنگ بھی کی تھی امن کمیٹی کے سمراٹ لوگوں کے ساتھ, اور اس میں سبھی مذہبوں کے لوگ تھے, اور اس میں اسی طرح کی ہدایات اور نردیش بھی جاری کیے گئے ہیں کہ سمویدھان قانون کے مطابق جلوس نکالا جانا ہے بڑے ہی پیار محبت سے, اور پرشاسن, سرکار اور عالموں کے جو نردیش ہیں ان کو بھی ایکسپٹ کرتے ہوئے آگے چلنا ہے. تو یہ ہم آپ کو کئی دن سے دکھا رہے ہیں, جب سے ربیع الاول شریف کا چاند دکھا ہے تب سے ہی پروگرام لگاتار جاری ہے. تو چلیے ایک بار اور پروگرام میں ہم چلتے ہیں. تو ازہری کمیٹی کے سدسیوں نے کئی دن سے اس کی تیاری کر رکھی تھی, اور آج یہ کافی بڑا جلسہ ہو رہا ہے, اور اس میں سینکڑوں کے حساب سے لوگ سماعت بھی کر رہے ہیں. اچھی باتیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں. یہاں پر ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے اور نبی کی
नबूवत दावा नबूवत से पहले जो महिलाओं की स्थिति थी उसके बारे में बताया जा रहा है कि महिलाओं को दोयम दर्जा और तमाम तरह की चीज़ें महिलाओं के मामले में होती थी, ये भी बताया जा रहा है। और इस्लाम के आने के बाद जो अभी हदीस अभी बता रहे थे मुफ्ती आजम कादरी कि जिसके यहाँ बेटी पैदा हुई और उसने उसकी परवरिश की तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। जी हाँ, महिलाओं को इस्लाम में काफ़ी बेहतर मर्तबा दिया जाता है। प्रॉपर्टी में हिस्से से लेकर बहुत सारे दर्जात दिए जाते हैं, मर्दों को भी और पुरुषों को भी। तो चलिए चलते हैं, नबी की जिस तरह की तालीम और नबी की जिस तरह की शिक्षाएं हैं उनको बताया जा रहा है रोज़ाना। तो अभी हम चलते हैं, ये प्रोग्राम हो रहा है, देखिए मैं आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खिताब हमारे काजी शहर हजरत अल्लामा मुफ्ती आजम कादरी साहब ने दिया। बस ऐसा लग रहा था ये बोलते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन ये जो जलसा सजाया गया है और अराकीन कमेटी ने, हमारी अजहरी कमेटी ने जिन बाहर के मेहमानों को मदऊ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह सभी हजरात तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह कह रहे हैं माशाअल्लाह। अभी मेरे नूर पर आप देख रहे हैं हजरत की खिताब के दरमियान शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना आली जनाब हाशिम रजा हुसैनी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह हमें और आपको उन्हें समाप्त करना है। और हजरत तो हमारे शहर में रहते हैं, माशाअल्लाह बहुत खिलता हुआ चेहरा है। इन उलमाए किराम की उम्रों में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हम सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, एक शेर समाप्त करें इंशाअल्लाह, फौरन प्रोग्राम की जानिब पलट रहे हैं। सभी हजरात बोलते हैं सुभान अल्लाह। माइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी डेकोरेशन, और हमारी कमेटी के नौजवानों ने बहुत मेहनत की है। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम कामयाबी की मंजिलों को तय करता हुआ गुजर रहा है, इंशाअल्लाह कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। एक शेर के हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, पीछे से बोल दें या रसूल अल्लाह, हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती नहीं शाम सवेरा नहीं होता, और वो नूरे मुजस्सम जो न होता तो जहां में सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता, सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता। आइए, जिस मेहमान का हमें और आपको बहुत देर से इंतजार था, जिसके लिए हम बहुत बेचैन थे, अब वो मेरे नूर पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मैं बिला किसी तमहीद के शहंशाह तरन्नुम शायर मुल्क हिंदुस्तान बुलबुले बाग़े मदीना आली जनाब हाशिम रजा हुसैनी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल कर लें बुलंद आवाज से नारे तकबीर। मोहब्बतों का सबूत लगे कि हल्द्वानी के जो नबी के गुलाम है, हल्द्वानी के लोग हैं, वाकई जश्न आमद रसूल पे जो प्रोग्राम तो सजाते हैं लेकिन उसको मनाना भी जानते हैं। बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजहरी कमेटी, नारे तकबीर। बुलबुल चमन में अपनी चहक छोड़ जाएगा, गुल को मसल भी दो तो महक छोड़ जाएगा। हाशिम रजा का दोस्तों लहजा कहेगा आज, आईना टूट कर भी खनक छोड़ जाएगा। तो आप ये देखें, बड़ी तादाद है इस समय जलसे में। जी हाँ, पप्पू के बगीचे मोहम्मदी चौक पर हम लोग मौजूद हैं, और जो अजहरी कमेटी है वो पिछले एक हफ्ते से इसकी तैयारी कर रही थी, और 1 रबीउल अव्वल यानी कि जो रबीउल अव्वल का चांद जैसे ही दिखा तब से ही अब तक रोजाना ही प्रोग्राम चल रहे हैं। मिलाद से लेकर कई जगहों पर
मिलाद से लेकर जलसे कई जगहों पर देखे जा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जुलूस मोहम्मदी के रोज भी, जी हाँ, 28 सितंबर को जुलूस मोहम्मदी का जुलूस भी निकलेगा और उस दिन भी इस तरह के प्रोग्राम आप देखेंगे। लोग उस दिन लोगों को पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, हर तरह की नेमत जो लोगों को मदद पहुंचा सके वो सब करते हैं। ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी कल होना है, वो हम आपको उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। माहिर दरसियात मुहब्बे वक़ार बिरादर कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वासिफ साहिब क़िबला, दीगर अरबाब मिंबर, मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? शोर बहुत हो रहा है, इस साइड से बचते हैं। पहली मर्तबा आपके इस बस्ती में मेरी हाज़िरी हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हम सबके पढ़ने को, आपके सुनने को कबूल मकबूल फरमाए। बहुत अच्छा बयान, नासिहाना गुफ्तगू बिरादर कबीर हज़रत मौलाना आज़म साहिब क़िबला से आपने समाअत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है उनकी इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती जावेद अख्तर कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात मोहब्बत और इहतराम के साथ बैठे रहें इंशाअल्लाह। और मैं इकराम तशरीफ करूँ। खतीब अहले सुन्नत नाशर मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब क़िबला की आमद हो चुकी है और हमारे हज़रत अज़ीज़ अल्लामा मुफ्ती जावेद अख्तर साहब क़िबला की आमद है। मैं कुछ देर आपके सामने रूबरू हूँ, मोहब्बतों के साथ समाअत कीजिए। थोड़ा सा माइक ऑपरेटर साहब माइक ठीक कर दीजिए ताकि मैं इन सामईन की समाअतों तक पहुँच सकूँ। सुभान अल्लाह। बहुत हेलो हेलो चेक, हेलो, थोड़ी सी और आवाज़ बढ़ाएं जहाँ तक पब्लिक को समझ में। बेस कम कीजिए थोड़ा सा। हेलो हेलो चेक, हेलो। तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए? जरा हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। तो हल्द्वानी की कई मस्जिदों के इमाम और आलिम यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा शायर इस्लाम के तौर पर भी हल्द्वानी से लेकर कई बाहर के नात ख्वां और शायर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि नबी की शान में नात वगैरह पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छी आवाज़ में। नबी की सीरत और नबी की ज़िंदगी को बताने की कोशिश होती है इन 12 दिनों में। जी हाँ, आपको पूरी ज़िंदगी अच्छे काम करने हैं, सबका ख्याल करना है, सबके दुख दर्द को दूर करना है। एक कांटा भी किसी से मोमिन को ना चुभे, ये सिखाया जाता है। इन 12 दिनों में एक तरह से ट्यूशन होता है और नबी की जो हदीसें हैं, नबी की ज़िंदगी के जितने अमल हैं वो लोगों को बताए जाते हैं। सिर्फ यहीं पर ही नहीं, बहुत सारी जगहों पर महिलाओं के भी, औरतों के भी जलसे और इज्तिमा हो रहे हैं इन 12 दिनों के अंदर। ये भी है क्योंकि पर्दे का मसला रहता है तो बंद जगहों में वो प्रोग्राम होते हैं, तो ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज भी प्रशासन ने साफ तौर पर इस बात को कहा और आलिमों ने भी इस बात की हिदायतें जारी की कि म्यूजिक या बहुत तेज साउंड वाले डीजे वगैरह जुलूस में इस्तेमाल ना हो, हिसाब से चलें, बहुत ख्याल रखें, एक दूसरे का चलें, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, भाईचारे को ध्यान रखें सभी के लिए। तो इस तरह की हिदायतें जारी की गई हैं। सुबह 9 बजे से जुलूस निकलेगा, लाइन नंबर 17 से जिस तरह से निकलता है और लगभग उसको खत्म होते होते 5 बज जाते हैं। अमूमन 4 बजे के आसपास दुआ हो जाती है गफ्फारी मस्जिद पर। मुस्लिम एक्शन कमेटी है, उसकी नुमाइंदगी में रहता है इंतजार साहब उसके मुखिया रहते हैं। 1979 से हल्द्वानी में जुलूस मोहम्मदी निकलना शुरू हुआ, उसमें मरहूम डॉक्टर इंद्र हृदयेश का भी रोल था। जी हाँ, उस समय लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया कि उत्तर प्रदेश में हल्द्वानी दूसरा या तीसरा शहर था जहां पर जुलूस मोहम्मदी निकलना शुरू हुआ था। तो बड़ी कुर्बानियों के बाद ये जुलूस निकलना शुरू हुआ था। तो हल्द्वानी उन बड़े शहरों में शुमार है जहां पर इसकी शुरुआत हुई। तो इसी कारण हल्द्वानी में जुलूस मोहम्मदी बड़ी शानो शौकत और बड़ी भीड़ के साथ निकाला जाता है। हम जुलूस की भी बात करें तो तकरीबन 30 से 40 हजार लोग आप जुलूस में देखेंगे। जी हाँ, और तकरीबन लगभग
लगभग 8 से 9 किलोमीटर के एरिया में जुलूस घूमता है, क्योंकि लाइन नंबर 17 से होता हुआ इंदिरा नगर और फिर बड़ी रोड छोटी रोड होते हुए आगे की ओर जाता है। तो चलिए अब नात आपको सुनाते हैं। खुदा ने तो खुद जश्न उनका मनाया, खुदा ने तो खुद जश्न उनका मनाया, चलो जश्न आमद मनाए नबी का, खुदा ने तो खुद जश्न नारे रिसालत नारे गौसियत, सरकार की आमद, हाथों को उठा के जवाब दे, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न आमद रसूल, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजहरी कमेटी। सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। चलो जश्न आमद मनाए नबी का, ज़मीं सज रही है, ज़मीं सज रही है, फलक सज रहा है, ज़मीं सज रही है, फलक सज रहा है, कि सारा जहां ये दुल्हन बन रहा है, कि सारा जहां ये दुल्हन बन रहा है, ज़मीं सज रही है, ज़मीं सज रही है, फलक सज रहा है, कि सारा जहां ये दुल्हन बन रहा है, कि सारा जहां ये दुल्हन बन रहा है, कि काबा उन्हें देख कर मुस्कुराया, कि काबा उन्हें देख कर मुस्कुराया, चलो जश्न आमद मनाए नबी का, चलो जश्न आमद मनाए नबी का। मेरे साथ मिलके पढ़िए, चलो जश्न आमद मनाए नबी का। सुभान किसका? किसका? जोर से बोलिए किसका? इस बारे में आला हजरत ने कहा था, सबसे आला ओ आला हमारा नबी, जोर से बोलिए, सबसे आला ओ आला, सबसे बाला ओ बाला, चलो जश्न आमद मनाए, जोर से बोलिए नबी का, मेरे साथ मिलके चलो जश्न आमद मनाए नबी का, और जोर से चलो जश्न आमद मनाए नबी का, ज़मीं पर खुदा का महबूब आया, चलो जश्न आमद मनाए नबी का। और जो अपने घरों को सजाते हैं, जो हुजूर के विलादत के जुलूस में जाते हैं, एक शेर उनके लिए पेश करता हूँ, झूम के कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ मुसलमान है वो, क्या बात है। मुफ्ती जावेद साहब किबला शेर सुने। आशिम भाई बहुत अच्छा पढ़ा। मुसलमान है वो, मेरी जान है वो, मैं उस पर फिदा, मुझ पे कुर्बान है वो, मैं उस पर फिदा, मुझ पे कुर्बान है वो, मुसलमान है वो, मुसलमान है वो, मेरी जान है वो, मैं उस पर फिदा, मुझे पे कुर्बान है वो, ये कह के कदम, ये कह के कदम, ये कह के कदम जिसने अपना बढ़ाया, चलो जश्न आमद मनाए नबी का, चलो जश्न आमद मनाए नबी का, ज़मीं पर खुदा का महबूब आया, चलो जश्न आमद मनाए नबी। नारे रिसालत, नारे गौसियत, आमदे रसूल, आमदे रसूल। सुभान अल्लाह। मक्तब पेश करता हूँ, कुछ लोग हुजूर के इस
जश्न से सुन्नियों के घरों में झंडा लगाने से जलते हैं। वो उनका काम है, हमारा काम क्या है? झूम के कहिए सुभान अल्लाह। चलो जश्न आमद मनाए नबी का, ये है इश्क वालों का प्यारा तरीका, है हाशिम ये अहले वफा का सलीका, है हाशिम ये अहले वफा का तरीका, ये है इश्क वालों का प्यारा तरीका, है हाशिम ये वफा का सलीका, कहाँ सब कहे से में ये जश्न आया, कहाँ सब कहे से में ये जश्न आया, चलो जश्न आमद बनाए नबी का, चलो जश्न आमद बनाए नबी का, ज़मीं पर खुदा का वो महबूब आया, चलो जश्न आमद बनाए नबी का। अच्छा लगा आप लोगों को? ये वो कलाम था जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, आपको सुनाया है पहली बार। अब मैं फरमाइश जो आला हज़रत के दीवानों की है वो पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं कोर्स रज़ी में इस कलाम को पेश कर रहा था, तो जो आला हज़रत के दीवाने थे वो बहुत मोहब्बतों के साथ सुन रहे थे। सुभान अल्लाह। मैं देखता हूँ यहाँ कितने मोहब्बतों से सुनते हैं आप। आला हज़रत के दीवाने जितने हाथों को उठा के कह रहे सुभान अल्लाह। कमेटी के नौजवान मौजूद हैं यहाँ? ये सब पढ़े। अच्छा माशाल्लाह। बिलखुसूस ये कलाम बिलखुसूस आपके लिए पेश करता हूँ, और जितने आला हज़रत के हल्द्वानी के दीवाने हैं उनके लिए, उनके दिल की प्यासा है, ये जितने भी नौजवान खड़े पेश करता हूँ, कहते हैं झूम के सुभान अल्लाह। बरेली है हमारे आला हज़रत के दीवानों की दिल की सदा, बरेली है हमारे, बरेली है हमारे, बरेली है हमारी, वो मेरा रज़ा खान, रज़ा खान, रज़ा खान, रज़ा खान, रज़ा खान, वो मेरा रज़ा खान, रज़ा खान, रज़ा खान, रज़ा खान, वो मेरा रज़ा खान, रज़ा खान, रज़ा खान, रज़ा खान। बस पेश करता हूँ, सुनिए। तो साथियों, वो मेरा रज़ा खान, रज़ा खान, हर दुश्मन दी। तो साथियों, हम हल्द्वानी इंदिरा नगर मोहम्मदी चौक पर पप्पू के बगीचे में, ये एक बहुत ही शानदार और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। काफ़ी अच्छा जलसा यहाँ पर हो रहा है। बिलग्राम से तशरीफ़ लेकर आए सैयद सुहेल मियाँ, यहाँ पर आज मुख्य खिताब उन्हीं का होना है। उसके अलावा हल्द्वानी की कई मस्जिदों के आलिम भी यहाँ पर मौजूद हैं। अज़हरी कमेटी से जुड़े कुछ लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे यहाँ पर बात करूँगा। थोड़ा जोर से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फाजिल। जोर से बोलें। मोहम्मद फाजिल। मोहम्मद फाजिल, कब से तैयारी कर रहे थे? आज जलसे का क्या मकसद है? ये हम 8-10 दिन हमने तैयारी करी थी। जोर से बोलें। ये हमने 8-10 दिन तक तैयारी करी थी जलसे की। हम सब दोस्तों ने मिलकर जलसा कराया। कितने लड़के हैं आपकी समिति में? हमने 10 से 12 लड़के हमारी टीम में जुड़े हुए हैं। कब से तैयारी कर रहे थे? 8 दिन तक तैयारी कर रहे थे। क्या मकसद है जो आप 12 रबीउल अव्वल पर जलसा करा रहे हैं? हमने 12 रबीउल अव्वल में जलसा इसलिए कराया ताकि नौजवान इधर उधर भटक रहे हैं तो वो एक पैगाम, अच्छा पैगाम मिले कि जश्न ईद मालूम नबी मनाने का तरीका सीखे, कि जश्न ईद मालूम नबी मनाई जाती है, जो नबी की जिंदगी है, जो नबी की सीरत है, नबी की सीरत है, वो आज यहाँ बताएंगे, अपना पैगाम देंगे कैसे क्या करना है, उसके लिए जलसा सजाया गया। उसके लिए जलसा सजाया गया। तो 12 रबीउल अव्वल के मौके पर स्पेशली आज 10 रबीउल अव्वल को कर रहे हैं जी। 10 रबीउल अव्वल को जलसा हो रहा है। चलिए, तो यहाँ कौन कौन आज, और स्टेज पर कौन कौन है, कुछ नाम बता दीजिए। स्टेज पे आज हाशमी रज़ा मंजरी है, सैयद सुहेल मियाँ बिलग्राम शरीफ के सज्जादा नशीन है, वो आए हैं, तशरीफ आए हुए यहाँ पर। जी। और एक और है जो कहते हैं उनका नाम
फिलहाल मुझे हल्द्वानी की जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती आजम कादरी भी हैं और मोहम्मदी मस्जिद के इमाम साहब हैं, औसिया मस्जिद के इमाम साहब हैं, रजा मस्जिद के इमाम साहब को दावत दी है वो हैं, और भी सारी मस्जिद के इमाम को दावत दी है। इंशाल्लाह वो सब शायद तफसील बताएं। जुलूस के दिन भी कुछ करेंगे आपकी समिति अजहरी कमेटी? जुलूस के दिन क्या करेगी? जी बिल्कुल इंशाल्लाह जुलूस की तैयारी कर रखी है अजहरी कमेटी ने। बाकी आपने सजावट वगैरह काफी करी है, जुलूस निकाला जाएगा और अपनी रोड की पूरी सजावट करवा चुकी है। गलियों को सजा रहे हैं आप लोग? गलियों को सजा रखा है, मकानों को सजा रखा है। मकानों को सजा रखा है। तो ये जो सजा रखा है सब आप ही लोगों ने सजावट करवाई है? बिल्कुल ही हम लोगों ने सजा रखा है। और इंशाल्लाह हमारी जो हम जामे शरीफ में लंगर कर रहे हैं उसकी प्रोग्राम। अच्छा, लंगर करेंगे? किस चीज का लंगर कर रहे हैं? फल फ्रूट हम बांटेंगे, जैसे फ्रूट वगैरह बांटेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें आप, मैं जिसकी बात कर रहा था वो यही कि जुलूस के रोज भी अजहरी कमेटी यहाँ पर गलियों को सजाएगी, और यहाँ अभी भी आप देखें लोगों ने अपने मकानों को भी सजाया है और अब गलियों को भी सजाने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये देखिए जिसकी बात मैं अभी कर रहा था वो यही है। एक घर नहीं है, आप बनभुलपुर में तशरीफ लेकर आइए तो आपको हजारों घर सजे हुए मिलेंगे। हजारों घर, एक नहीं हजारों घर आपको सजे हुए मिलेंगे। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था, लोगों ने अपने घरों को सजाना शुरू कर दिया। एक घर नहीं, दो घर नहीं, अभी 2 दिन बाकी हैं। आज 10 रबीउल अव्वल है और 12 रबीउल अव्वल को जुलूस वगैरह निकलेगा और यौम पैदाइश माना जाता है। तो ये तो साथियों अजहरी कमेटी के जरिए से आज ये पप्पू के बगीचे में एक सरजमीन हल्द्वानी पर अजीमुशान जलसा आज यहाँ पर मुनकिद है। जी हाँ, 12 रबीउल अव्वल तक इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बताएं, लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि नबी की सीरत और नबी की ज़िंदगी को जाना जाए, उस पर अमल किया जाए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, जी हाँ, हमेशा सच बोलें, ये कोशिश करी। कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंची उनसे, हमेशा गरीबों की मदद करी, कमज़ोरों की मदद की। यह मुझसे ज़िंदगी का मामूल था। पड़ोसी को भी तकलीफ ना हो, यह नबी की तालीम थी। सामाजिक ज़िंदगी आप उनकी समाप्त कर सकते हैं, वो एक मॉडल लाइफ थी और उस पर चलकर दुनिया के अंदर करोड़ों लोग नबी की ज़िंदगी पर चलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं। आज जिस तरह से नौजवान नशे की गर्त में जा रहे हैं, तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सिलसिले में जिस तरह के जलसे हो रहे हैं, अभी एक नौजवान यही बता रहे थे कि आज जिस तरह से नौजवान भटक रहे हैं, उनको राह पर लाने के लिए भी इस तरह की चीज़ें हैं। जो काम अमूमन सरकारें कोशिश करती हैं कि लोग अच्छे काम करें, इस तरह के जलसे से भी इस तरह की अच्छी चीज़ नौजवानों में जाती है। तो खैर 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में हम ये जलसा सीधे लाइव आपको दिखा रहे थे। तो आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें। कल ही एक ब्लड डोनेशन कैंप लगना है जुलूस मोहम्मदी के सिलसिले में। उसके अलावा बच्चों की तालीम के लिए भी कल दिन में एक प्रोग्राम होगा। हमारी कोशिश होगी हम उसको भी लाइव आपको दिखाएंगे और जुलूस तो आपको दिखाएंगे ही। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसे लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।